Hello everyone, welcome to the tab. So today we have the fourth class of our ongoing costing foundation series through the help of MCQs, right? So today's class is all about job costing and batch costing, and this class is going to be a short class and as well as an important one. Why this is going to be a short class? Because we are not going to study any new topics, or you can say new concept, because we have already talked about various methods of costing in our previous 3 classes as well, right? So therefore today's class is going to be a short class, but simultaneously it is an important one from the examination point of view, right? So we are not going to delay our lecture, so let's start this. And the first question we have is, which method of costing is commonly used by companies that produce unique products or services? See, whenever we talk about unique products, we mean to say customizable product, customized products as per the customer's demand, है ना? So remember कि जब भी हम बात करते हैं कि customized product है, like we have the interior decoration, right? We have customized furnitures, high price sofas, high price beds. That is too customized as per the needs of customer, right? So the best example would be interior decoration example. So in this case, what happens? This job differs from customers to customer. Different customer have different needs with regards to the interior decoration of their house, है ना? तो उनकी डिमांड्स अलग हैं, और उनकी डिमांड को मीट करने के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस उनको प्रोवाइड की जाएगी, isn't it? So इस तरह के जॉब में किस तरह की कॉस्टिंग यूज होती है, ये पूछा गया, ठीक है? कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है? इज इट प्रोसेस कॉस्टिंग? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज सी, इन द प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जिसमें कि प्रोडक्ट्स वेरियस प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से केमिकल इंडस्ट्री, और यू कैन से रबर इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है ना कि पहले रॉ मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस के से पास थ्रू होंगे, देन दे विल पास थ्रू फ्रॉम द सेकंड प्रोसेस, देन द थर्ड प्रोसेस, राइट? एंड दैट्स हाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज मेड. तो इसका आंसर प्रोसेस कॉस्टिंग तो नहीं है ऑब्वियसली. देन सेकंड ऑप्शन इज योर जॉब कॉस्टिंग. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज वी हैव द यूनिक प्रोडक्ट, right? So company or organization has to provide a unique product or services as per the demand of customers, right? So option number B is the correct answer here. And now the C option we have is batch costing. What is this batch costing? See, batch costing is a type of costing, and it is used in the industries where the products are manufactured in batches. For example, let's say tires we have. अगर हम टायर इंडस्ट्री की बात करें तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का टायर जो है, एक पर्टिकुलर रेडियस की मेजरमेंट का जो टायर है, वो मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी टायर कंपनी को मिलता है, तो आपको लगता है कि वो सेम डायमीटर या सेम रेडियस का जो टायर है एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑर्डर के लिए अलग अलग प्रोड्यूस करेगी? नहीं. दे विल यूज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स एज अ बैच टू मैन्युफैक्चर इट, राइट? तो वो एक ग्रुप में, एक सेट ऑफ ग्रुप में क्या करेंगे, इन टायर्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो है ये सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स हैं, क्योंकि एक तरह की रेडियस है टायर्स की, इनको साथ में प्रोड्यूस किया जाएगा बैचेस में. तो इस तरह की कॉस्टिंग को बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है? सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. सो ये डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या है. जॉब कॉस्टिंग वेयर द वर्क इज अंडरटेकन to customers' special requirement, right? It is a customized product or service as per the customer's needs, right? For example, we have the interior decoration, and we have also the painting requirement. So let's suppose a customer demands that मुझे मोनालिसा की पेंटिंग चाहिए. अब ओरिजिनल तो नहीं मिलेगी, अगर उसने डिमांड की ऐसी, तो उसके कहने पे एक पेंटिंग कस्टमाइज बनाई गई, या फिर उसने अपना स्केच बना दिया. दैट वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल. अगर उसने कहा कि मेरा स्केच बना के मुझे दो, ठीक है? तो ये एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है. ये ऐसा तो नहीं है कि उसका स्केच हर कोई खरीदने वाला है, कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं. और सेलिब्रिटी है तो बात अलग है, एक नॉर्मल सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि विराट कोहली का स्केच है तो कोई भी खरीद लेगा, isn't it? बट अगर कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है, उसको अपना स्केच बनवाना है या अपनी पेंटिंग बनवानी है, तो ये किस तरह की कॉस्टिंग यूज़ करेंगे इसमें? जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? प्रोसेस कॉस्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द इनपुट गोज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, राइट? प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल्स की बात करें तो हम सोप इंडस्ट्री हो गई, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गई, और पेंटिंग इंडस्ट्री भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करती है, ठीक है?
अब जॉब कॉस्टिंग को ना, जॉब कॉस्टिंग एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में सब डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, राइट। तो व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये भी समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ बिग जॉब। जॉब में भी हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस को केटर कर रहे हैं कस्टमर्स की, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक द जॉब कॉस्टिंग बट विद अ स्लाइट डिफरेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंसिस्ट ऑफ बिग जॉब्स like construction of dams, construction of bridges, construction of building apartments, right, a complete project. So these are type of contract costing. So here the cost unit is the contract itself, and in the job costing the cost unit is the job itself, right. अच्छा, बैच कॉस्टिंग क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल लेके टायर्स का, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट फर्दर, राइट। चलो, कुछ और तरह की कॉस्टिंग्स भी हैं, मेथड्स हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जब इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो, है ना। सो व्हाट इज दिस ऑपरेशंस कॉस्टिंग? सी, वी टॉक्ड अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग, यू ऑल नो वी टॉक्ड अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस से भी अगर हम और डिटेल्ड में जाएं तो ऑपरेशन होते हैं। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि प्रोसेस बोला फिर आपने ऑपरेशन बोला, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। सी, मेनी ऑपरेशंस व्हेन कंबाइंड टुगेदर मेक अ प्रोसेस। अब आई बात समझ में, अब चमका। वेरियस ऑपरेशंस को जोड़ देते हैं तो एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस कॉस्टिंग क्या है? बस एक डिटेल्ड कॉस्टिंग है। उस प्रोसेस को अगर हम और सब डिवाइड कर देते हैं ऑपरेशन में, और ईच ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस्टिंग करते हैं कि हर एक ऑपरेशन में कितनी कॉस्ट लगी है, तो वो ऑपरेशंस कॉस्टिंग है। इजी इनफ, कुछ नहीं है, बट ये मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है। मतलब प्रोसेस और ऑपरेशंस एक दूसरे के ही बहुत ही क्लोज कह सकते हो है, तो ऐसे इंडिविजुअली नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी फॉर द नॉलेज पर्पस आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज दिस ऑपरेशंस कॉस्टिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग? थ्री नेम गिवन टू यू and three of them are same. This type of costing is used where there are standard or similar products that are being manufactured, right? Like we have the brick industry, right? So एक तरह के similar product जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो एक एक करके तो बनाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बनाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हैं, तब हम सिंगल यूनिट या फिर आउटपुट कॉस्टिंग यूज करते हैं। सी, व्हेन द प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और 2 और 3 वेराइटीज ऑफ सेम प्रोडक्ट, राइट, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगल, या फिर इसे यूनिट कॉस्टिंग बोल सकते हैं, या फिर इसे आउटपुट कॉस्टिंग बोल सकते हैं। सो वी हैव द ब्रिक एज एग्जांपल, एज द बेस्ट, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रिक इन दिस सेंस, राइट। नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? सी, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द ऑपरेशंस कॉस्टिंग और this operating costing. They both are different. Operations costing is a part of, you can say, process costing, because many processes, many operations make up to form a process, right? But what is this operating costing? Operating costing ना सर्विस कॉस्टिंग है। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस कॉस्टिंग। तो जब सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो विच मेथड दे आर गोइंग टू यूज फॉर कॉस्टिंग? दे आर गोइंग टू यूज सर्विस कॉस्टिंग, राइट। तो यही है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसी का नाम दिया गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, इंस्टेड सर्विसेज यूज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलो, तो ये ब्रॉडली था हमारा क्लासिफिकेशन कि बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं जॉब कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम ये 3 क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। दो इनमें डिस्टिंक्शन भी है, बट इन अ वे वी कैन से दैट बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग एज वी हैव डिस्कस्ड, राइट। चलो शुरू करते हैं। अब आंसर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज कॉमनली यूज बाय द कंपनीज दैट प्रोड्यूस यूनिक प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। This is about job cost sheet, okay? So we have already discussed about cost sheet, remember in the previous class? तो हम दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। Which of the following cost is recorded on the job cost sheet? So just like we studied about the cost sheet, same applies here for the job cost sheet as well. Nothing is different. We are going to take direct material, right? Remember na cost sheet from the previous class? You are going to take direct material, you are going to take direct labor, you are going to take direct expenses, then you have your prime cost, remember? Then you have the overheads, right? And when you talk about factory overheads,
and this was your prime cost, right? And when you add these two, you get your works cost, remember or not? Then you add your administrative overhead related to production, right? And you get your cost of production. So this we have discussed already in the previous class. So now I have discussed this again because I wanted to make sure that you are well aware of this cost sheet. Which of the following cost is recorded on the job cost sheet? Direct material cost, obviously it will get recorded in the cost sheet. Direct labor cost, yes. Manufacturing overhead cost, obviously yes. So the answer would be all of the above. Which of the cost is recorded? All of the above. So option number D is the correct answer here. So see, here is the cost sheet we just discussed. Direct material, direct labor forms prime cost. Then we have the factory overheads. So we get works cost. Then we have administrative overhead related to production. Please remember this. This is related to production. Then we get cost of goods sold, or we call it cost of production, right? After adjusting the opening and closing stock of finished goods, this cost of production becomes cost of goods sold, right? Now, if you add selling and distribution overhead to this cost of production, then you get your total cost. So that is easy. We have already discussed this so many times, right? And we have also discussed the answer of this question, right? So the third question we have is, the NGF company uses job order costing system and it gives you the following data. And based on this data, you have to find what is the cost of goods manufactured by the NGF company. It is very easy question. You just have to prepare the cost sheet. So see, it says direct material used to the production. You know, you have to put direct material first to prepare the to find out the overall cost of the job. So direct material is 1,80,000, right? You have indirect material issued to the production. See, that will be included in the manufacturing overhead. If it is used in the production, so that will be included in the manufacturing overhead, and manufacturing overhead is given to you separately. So you don't need to add this and this separately, right? So this will be of no use. Now you have the direct labor as 2,14,000. So direct labor is 2,14,000, right? Now you have the manufacturing overhead cost that is being absorbed by the units, or that is being applied, you can say, is 2,26,000. But another information is given to you, that is manufacturing overhead cost actual is given to you as 2,50,000. So what data you are going to use for preparation of the cost sheet? You are going to use this manufacturing overhead cost that is being applied, right? Not this. So that is, so the overhead cost that is being absorbed by the units is this. So you are going to use overhead as 2,26,000, right? This is the trick here. This is the basically question is confusing you here, right? So अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है. योर आंसर विल बी देयर, राइट? सो इस क्वेश्चन में एक ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था, या एक या दो कह सकता हूँ मैं, कि इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू द प्रोडक्शन को यूज़ नहीं करना था, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी. तो यही ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से करना है क्वेश्चन. और दूसरी चीज़, कितना अप्लाई हुआ है कितना एक्चुअल है, उसमें से हमें अगर डेटा उठाना है तो अप्लाइड में से उठाना है, ना कि एक्चुअल में से, क्योंकि अब्जॉर्ब जो यूनिट ने किया है वो इतना ही अमाउंट किया है, तो इसको क्यों लेंगे जो एक्चुअल में है, ठीक है? जो बचा वो हमारा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, बट जितना एक्चुअली में अप्लाइड हुआ है हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? कॉस्ट शीट में तो 1,80,000 हमने लिखा, ठीक है? फिर हमने 2,14,000 लिखा, एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. देन वी इंक्लूडेड overhead cost of 2,26,000, absolutely correct here, and then you are going to add it, you are going to get your cost of goods manufactured, right? Because there are no ending inventories and no opening inventory, right? So we have our answer with us, that is 6,20,000 by adding these three. So option number C is the correct answer. Okay, next question we have is, in a job order costing system, which of the following cost is not an example of manufacturing overhead cost? So by now I hope कि आप सबको, सारे बच्चों को मेरे पता चल गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है? ये बताने की ज़रूरत है क्या? जो चीज़, जो ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट नहीं होगा, वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ होगा या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हुआ होगा, इजंट इट? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी इसमें आ जाएगी, ठीक है? तो ये तो आंसर नहीं है.
फ्यूल यूज इन फैक्ट्री, इट इज यूज इन फैक्ट्री ना, तो इट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, it is also included in the manufacturing overhead cost. Then you have the sales commission, that should be included in the sales and distribution overhead. So the correct option is option number D, sales commission. सारे बच्चों ने सही दिया होगा, मुझे पता है ये बात. ठीक है. Next question we have is manufacturing overhead would be over applied. See, actual मान लेते हैं overhead 1 लाख है, बट जो अप्लाई हुआ है या फिर जो अब्जॉर्ब हुआ है वो मान लेते हैं 1,10,000 है. तो इट इज़, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओवर अप्लाइड, ओवर अब्जॉर्प्शन भी कहते हैं इसको. ठीक है. तो ये एक्चुअल था और ये अप्लाइड था. तो कह रहा है ऐसा कब होगा, जब एक्चुअल ओवरहेड छोटा होगा अप्लाइड ओवरहेड से. एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेन योर अप्लाइड ओवरहेड इज ग्रेटर देन योर एक्चुअल ओवरहेड, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एग्जांपल, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. रेस्ट ऑफ द एग्जांपल you don't need to read out because your A option is absolutely correct. So we have now the question number 6. Question number 6 says the following cost data relates to the job 553C. We have the direct material cost as 27,400. We have been given the direct labor cost as well as rupees 9,600. We have the manufacturing overhead cost that is being applied in the units or that is being absorbed by the units as rupees 4,000 at the rate of 25 rupees per machine hour for the 160 machine hour. So when you are going to multiply it, you are going to get your 4,000 rupees as your manufacturing overhead cost. Now selling and shipping cost, overhead cost you can say, is 14,000. Now the question says it consists of 2,000 units and it has been completed. Question is asking about what is the cost of goods sold per unit. See, यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यान देना है कि it is asking about cost of goods sold, COGS, or we can say cost of production, not about cost of sale. तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि जब हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं उसके बाद हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करते हैं. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट आवर वर्क्स कॉस्ट. और इसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होते हैं, अगर उनको ऐड करते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इजंट इट. तो अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे तो वी हैव आवर हेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ अमाउंट है, ठीक है, प्लस प्लस कर देता हूँ मैं. वर्क्स कॉस्ट आया और हमने एडमिन ओवरहेड कुछ ऐड कर लिया तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम COGS भी बोलते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं. तो हमारा यहाँ आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं. सो वी गेट आवर कॉस्ट ऑफ सेल. तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक. ठीक है, इतने बार बता दिया है मैंने. ये कॉस्ट शीट का कंडेंस्ड फॉर्म है बेसिकली. अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसका मतलब है जो ये वाला स्टेप पूछ रहा है, इसका मतलब है कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड है वो काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. इसका मतलब है जो ये डेटा है ये इररिलेवेंट है मान लें. तो हमें क्या करना है, बाकी सारे जो डेटा रिलेवेंट है उनको ऐड कर लेना है. डायरेक्ट मटेरियल 27,400, राइट. We have direct labor as 9,600. So we will get our prime cost, right? फिर हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, that is our 4,000. That's it. Yeah, that's it. So we will have our total cost here. By adding these three, we will have our total cost. अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो हम डिवाइड कर लेंगे 2,000 से. कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, है ना. So we have added 27,400, 9,600 and 4,000 and we have divided it by the number of unit produced, that is 2,000 units. So we are going to get our cost per unit cost as 20.5 per unit. ठीक है. तो हम सेलिंग और शिपिंग कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो COGS का पार्ट है ही नहीं, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होगा. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन्ड फॉर ईच बैच टू रिकॉर्ड all the costs related to the production in that batch. अच्छा क्वेश्चन है. तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं बैच के सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए? बैच नंबर नो, प्रोडक्शन ऑर्डर नो, बैच कॉस्ट कार्ड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी यूज बैच कॉस्ट कार्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इन दैट बैच. ठीक है जी, बड़ा आसान था, कुछ नहीं था. ऐसे करके कॉस्ट कार्ड है, बैच कॉस्ट कार्ड है,
एक पर्टिकुलर बैच से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होंगी सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। बैच नंबर तो साइड में लिखा रहता है, तो बैच नंबर तो आंसर नहीं हो सकता, प्रोडक्शन ऑर्डर का कुछ मतलब नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन नंबर सी, बैच कॉस्ट ऑर्डर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज we have to find out the economic batch quantity, just like we have studied about economic order quantity in our previous classes, remember? So इस क्वेश्चन में हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था याद है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो साइज होता है ऑर्डर का, ऑर्डर साइज होता है जिस साइज को ऑर्डर करने में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस हमारी कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए, वो ऑर्डर साइज को बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कुछ चमका? पढ़ा चुके हैं पहले, हम सब डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए, उस ऑर्डर साइज को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया तो बैच क्वांटिटी भी आ जाएगा। कैसे? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वो बैच साइज है, क्या है? वो बैच साइज है, उस क्वांटिटी का बैच साइज है जिसको कंसिडर करने पे हमारी सेटअप कॉस्ट, क्योंकि देखो जब बैच है, कुछ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर कन्वर्ट करना है, उनको प्रोसेस करना है, तो इसका मतलब है कि मशीन को सेट करना पड़ेगा जितने बार बैचेस आएंगे, तो जिसमें कि सेटअप कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट तो लगनी है ना, होल्डिंग कॉस्ट अगर हम बैच बना रहे हैं कुछ यूनिट्स का, तो वो मिनिमम हो जाए। कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस सेटअप कॉस्ट आ गया है ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी लिख दिया गया है। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला भी एक बिल्कुल सेम है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला क्या स्टडी किया था? कुछ याद आ रहा है? 2 एनुअल डिमांड और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट था। बिल्कुल सेम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का है। क्या है? यहाँ पे एनुअल डिमांड था तो यहाँ भी एनुअल डिमांड हो जाएगा, या फिर एनुअल कंजम्पशन था। यहाँ पे बात एक ही है। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहाँ सेटअप कॉस्ट डाल देते हैं, ठीक है? तो एस कर देते हैं डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। डिमांड कितनी है हमारी? 9600 है ना, दिख रहा है ना बच्चों? मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कॉस्ट कितनी है? 200 डायरेक्टली गिवन टू अस, सो यू विल पुट 200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दी है, बट कोई बात नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दे रखी है 25 और 10% दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% ऑफ 25 इज 2.5, क्योंकि 1/10 कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आसान था, कुछ नहीं था, क्योंकि पढ़ चुके हैं तो सब कुछ आसान लगेगा, है ना? तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इज योर 1239, 9600 200। देखो हमने किया है 2 × 9600 × 200, और नीचे भी हमारा इनने 0.125 कर रखा है, मैंने डायरेक्ट 2.5 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 10% ऑफ 25 इज 2.5, इजंट इट? तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 1239 अप्रॉक्सीमेटली। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है? नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज बीके बियरिंग लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी एनुअल डिमांड क्या है ऑन अ स्टडी बेसिस। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। और हमें पता है कि जब हम EOQ या EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालते हैं तो हमें कैरिंग कॉस्ट पर एनम की लेनी होती है। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, तो अगर 10 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, पहली बात तो 100 से डिवाइड कर लोगे तो 0.1 आ जाएगा, बट ये पर मंथ की कॉस्ट है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैरिंग कॉस्ट पर एनम की आ जाएगी। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। सर अब आगे बताइए, मैं बताता हूँ। कैरिंग कॉस्ट आ गया हमारा, एनुअल डिमांड हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 24,000। ठीक है, सेटअप कॉस्ट भी हमें दे रखी है डायरेक्टली 324 रुपीज़। ठीक है, तो बचा क्या क्वेश्चन में? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रन्स तो सेकेंडरी है, पहले हमें निकालनी पड़ेगी बैच की क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कि हमारी कितनी क्वांटिटी में बैचेस जो हैं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। 2 × डिमांड हमें 24,000 दी है ना, ठीक है, 324 हमें दिया हुआ था सेटअप कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट थी हमारी 0.1 × 12, दैट इज़ योर 1.2। ठीक है, तो 1.2 हमारा देखो कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान था, कैलकुलेशन कर लेना। 3600 यूनिट आ गई, तो हमारी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गई 3600। एक साथ एक बैच में इतनी यूनिट्स होंगी, बट टोटल यूनिट्स कितनी चाहिए हमें?
24,000। हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रन्स कितने होंगे, कितने बार ये बैचेस रन करेंगे। एक बैच का साइज 3600 है, तो कितने बैचेस लगेंगे, कितने रन्स होंगे भाई। 24,000 टोटल चाहिए हैं, और हम एक रन एक बैच में तो करेंगे, है ना, एक बैच को एक साथ प्रोड्यूस करेंगे ना। तो हमारे एक बैच में यूनिट्स कितनी है, 3600, तो दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टोटल बैचेस आ जाएंगे, या फिर कह लो नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे। 24,000 डिवाइडेड बाय 3600 आ जाएगा 20/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। इतना तो बहुत आसान था, हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कंसेक्यूटिव जो रन हुआ है, जो बैचेस का रन चला है 2 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ध्यान से सुनना है हमें। कुछ नहीं है, पूरे साल भर में ये बताओ कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, इतना हमें पता है। अब पूरे साल भर में अगर 365 डेज हैं, बड़े मेरी बात ध्यान सुननी है, ठीक है, और इन पूरे साल भर में जो नंबर ऑफ रन्स हैं, जो नंबर ऑफ जो बैच को कितने बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि एक बैच हमारी कितनी यूनिट्स की थी देख लेते हैं, 3600 यूनिट्स की थी ना एक बैच, ठीक है। इस तरह से हमारे कितने बैच हो गए थे टोटल, बताओ मेरे को। 20/3 हो गए थे कि नहीं हो गए थे, याद है कितने हो गए थे, 20/3। तो इसका मतलब है इतने रन हम करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। बट ये जो इतने रन हो रहे हैं, ये कितने साल में हो रहे हैं, एक ही साल में तो हो रहे हैं, तो एक साल में होते हैं 365 डेज। अगर हम साल में जितने रन हो रहे हैं उनको 365 डेज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा कि 2 रन के बीच में कितना डिफरेंस है। एक रन अगर हम फर्स्ट डे को कर रहे हैं, तो अगला रन हम किस डे पे करेंगे ये आ जाएगा, क्योंकि ये रन जितने हैं ओवरऑल 20/3 ये पूरे साल भर में हो रहे हैं। तो अगर ये 20/3 हर दिन होते, अगर ये 20/3 हर दिन होते, तो 3600 बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाते यूनिट्स। तो कुछ गैप होगा ना ईच रन का, वो गैप कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड करके। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 कैलेंडर डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट शुड, नहीं ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ये हम कर चुके हैं। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रन 20/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इसी बारे में है कि व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन दी 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, दैट इज़ योर 55 कैलेंडर डेज। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, एक बार कर लेना, अपने आप भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप वैसे भी हो गई होंगी, बट फिर भी एक बार कर लेना, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस लगती है, खुद से रजिस्टर पेन निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट में तो बिल्ड मेरे बोलने से हो जाएगा, बार बार सुन के हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है। कोई भी अगर अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो खुद से सॉल्व करना पड़ता है, ताकि कनेक्शन बिल्ड हो सके कि उस क्वेश्चन को देखकर क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सारे करने हैं खुद से, ठीक है। अगला हमारा आता है इन बैच कॉस्टिंग डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच। तो हमारे पास एक बैच है, इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ बैच को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट पर रन नो, कॉस्ट पर यूनिट यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था नहीं क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आज की क्लास मैंने पहले ही बोला था बहुत ईजी होगी, बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फाउंडेशन से ही आते हैं ना, और हम पहले 3 क्लास में अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, ठीक है। तो वो जिसने नहीं देखी है क्लास, वो तीनों क्लास देख लेना, वरना आज की क्लास कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल हैं उसके लिए वो 3 क्लासेस को दोबारा देख लेना, अगर समझ में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स ओनली। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये तो गलत है ऑब्वियसली। ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग चीज़ है। ऑपरेशन मतलब, ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होती है, ऑपरेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन मिलके फॉर्म अ प्रोसेस। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सेम कैसे हो सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो सर्विस कॉस्टिंग होती है, ये तो गलत है, ठीक है। ऊपर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग 2 तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और इस प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 क्लासिफिकेशन थे, याद है, याद होना चाहिए। तो इसमें 2 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज यूज्ड इन अंडरटेकिंग दैट प्रोवाइड सर्विसेज, गलत है बिल्कुल। सर्विसेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ना कि ऑपरेशंस कॉस्टिंग।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ ऑप्शन सेज ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड प्रोवाइड्स माइन्यूट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड इंश्योर्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड बेटर कंट्रोल। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि प्रोसेस से भी माइन्यूट होता है, प्रोसेस से भी डिटेल्ड होता है हमारा ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 says which of the following statement is incorrect regarding the features of batch costing। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। Each batch is treated as a cost unit, ले सकते हो, ये सही है, ठीक है। All costs are accumulated and ascertained for each batch, ये भी सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। A separate batch cost sheet is used for each batch, ये भी सही है, हमें सेपरेट कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है हर बैच के लिए, है ना। कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालनी है तो वी विल डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस, ये भी सही है। तो आंसर क्या है इसमें, इनकरेक्ट कुछ है ही नहीं, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो जो आंसर है वी हैव ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर है यार, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई है। चलो, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में करना है। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आप लोग के लिए। डैश, ये डिस्कस कर चुके हैं। डैश इज अ मेजर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स that can be produced at the minimum average cost in a given batch or in a product run। ये पढ़ चुके हैं हम, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।